Hello, welcome back, my dear students of class 6. Dear student, I am Rajendra, your science teacher, presenting this video for chapter 6. And chapter 6, I am at the last explanation of this chapter. And this chapter is the changes around us. My dear student, in this chapter, the changes around us, I have tried to solve the short answer question, very short answer, and long answer question here. And so many discussions were done in the class. So my dear student, let us start the answering the question, and you have to do at your home about the long answer question, that is third, fourth and fifth and sixth. Dear student, the short answer question number 2, and the answer of that question is the physical changes are like melting of wax and freezing of water. So these are the example of physical changes. The physical changes that are melting of ice, wax or freezing of water. These are the physical changes because these changes can come back in the original form. Okay, when they get the cool temperature. So dear student, question number 2 of short answer question that is given in your book. So you have to do this question like this. Dear student, come to the next, that is the question number 6. Dear student, question number 6 is the answer of the question number 6, that you have to do the explanation of solutes and solvent. So let us see. Solutes are the dissolving substances like salt and water, like salt, sugar, while solvent are the liquid or substance in which the solute get mixed or get dissolved. So let us highlight this solutes. Question number 6, solutes और डिज़ोल्विंग मीन्स जो घुलने वाली चीज़ है उसको सॉल्यूट बोलते हैं किसी भी घोल में, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया। लेकिन बच्चों जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट आर द सब्सटेंस आर लिक्विड, जो घोल होता है जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया, और भी कोई सॉल्वेंट हो सकता है, अल्कोहल हो गया। सो दीज आर कॉल्ड एज सॉल्वेंट, एंड व्हेन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गेट मिक्स्ड टुगेदर देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ solution. Students, this question number 6 that you have did it in the class itself, and now come to the next question, that is the question number 9. My dear student, एक क्वेश्चन था जिसमें कि ये कहा गया है कि एक बच्चा है, उसकी सिस्टर जो है, एक पीस का सिंबल था, पीओपी का बना हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ कोई खिलौना था, पीस का सिंबल था, तो उसको उसने तोड़ दिया। जब वो टूट के टुकड़ा हो गया तो उसके भाई ने क्या किया, उसको फिर से बुरादा बना करके, पीस करके, पाउडर बना के पानी में मिला के बनाने की कोशिश किया। तो ये पूछा है कि क्या वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका आंसर है बच्चों ये कि पीओपी इज़ ए केमिकल
विच रिएक्ट्स विथ वाटर वंस, केवल एक बार वाटर से रिएक्ट करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देयरफॉर ही विल नॉट बी सक्सेसफुल इन मेकिंग रिपीटेडली, दोबारा उसको बनाने में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार जो केमिकली रिएक्ट कर गया वो दोबारा रिएक्शन नहीं हो सकता, वो चाहे पाउडर बना ले या कुछ कर ले, उसको फिर से पीओपी ही लेना पड़ेगा बनाने के लिए। आई थिंक दैट दिस एक्सप्लेनेशन इज एनफ फॉर यू। सो पीओपी, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, and a chemical, that is a chemical which react with the water, means chemical changes is going on। एक बार जब केमिकल चेंज हो गया फिर वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, इसी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है बच्चों, एंड नाउ कम टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 2, and the answer of this question is, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि मिल्क कंटेन्स लैक्टोज and when we mix little amount of curd into it, कहने का मतलब ये है कि दूध से दही कैसे बनती है, इस पूरी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करना है। इसी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने के लिए हमने, आराम से लिखो, जल्दीबाजी नहीं होगी। इसी प्रक्रिया को करने के लिए हमने इसका आंसर ढूंढा है, और ये आंसर है मिल्क कंटेन्स लैक्टोज। लैक्टोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, उसको दबा लो किसी चीज़ से। लैक्टोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज इज ए कार्बोहाइड्रेट विच इज फाउंड इन मिल्क। तो क्या होता है जब हम इसमें थोड़ी सी दही मिलाते हैं, तो दही इज द लैक्टिक एसिड, कर्ड इज द लैक्टिक एसिड, and the formation of lactic acid from lactose starts, and whole amount of the milk get converted into the curd after some time। okay, तो इसी को आपको करना है। so again, milk contains lactose, and when we mix little amount of curd into it, the process of conversion of lactose into the lactic acid starts, which results the formation of which results the formation of curd from whole milk। ठीक है, पूरे दूध का दही जम जाता है। तो इसको भी हाइलाइटर से थोड़ा हाईलाइट करके देखते हैं कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मिल्क कंटेन लैक्टोज, ये जो लैक्टोज है दैट इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे सुक्रोज ग्लूकोज होता है वैसे लैक्टोज होता है। और जब इसमें व्हेन वी मिक्स्ड अ लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड, थोड़ा सा जावन डालते हैं दही का, लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड मीन्स थोड़ा सा जावन, दही का जावन जिसको बोलते हैं रूरल एरिया में भाषा में। तब क्या होता है कि वो पूरा जो लैक्टोज है वो बदलना शुरू हो जाता है लैक्टिक एसिड में। केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट्स, एंड आफ्टर सम टाइम द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द होल मिल्क takes place। okay, so I hope that you learned this question, this answer of the question number 2, long answer question number 2। and you should come to the next question, that is the question number 8। and in this question
इन दिस क्वेश्चन का आंसर जो है वो शेपिंग ऑफ क्ले। इसमें ये क्वेश्चन ये है कि जो कुम्हार है, कुम्हार अपने व्हील पे जब दिवाली के दिए बनाता है तो व्हील पे कच्ची मिट्टी को लेकर के पहले वो शेप करता है और शेप करके फिर ओवन में पकाता है। ओवन मतलब भट्ठी में पकाता है उसको। तो इस प्रक्रिया को पूरा एलेबोरेट करना है आपको कि कौन कौन सा चेंज होगा। तो पहले वो व्हील पर जब बनाता है वो कौन सा चेंज होगा और जो ओवन में पकाता है वो कौन सा चेंज होगा, यही आपको आंसर करना है। सो शेपिंग ऑफ क्ले इनटू ए पॉट इज रिवर्सिबल चेंज। जब तक वो बना रहा है तब तक मिट्टी फिर से लपेट के फिर से बना सकता है। सो शेपिंग ऑफ clay into a pot is a reversible change, while baking into oven is irreversible change। लेकिन जब वो पकाने के लिए डाल देता, जब वो पक जाता है, then it cannot be changed, it cannot be revert back, and that will be the irreversible change। So my dear student, let us highlight it. Let us highlight this question, shaping of clay into pot। जब वो बर्तन के रूप में बनाता है then क्या होता है, that is a reversible change। बन सकता है फिर पूरा दोबारा, दिया टेढ़ी मेढ़ी हो गई फिर दोबारा बना दिया, ठीक है। और लेकिन जब वो बेक कर देता, बेक मतलब पका देता है, when it baked in the oven then it will be called as irreversible change। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ओरल भी क्लासरूम में डिस्कस किए हैं, ओरल आंसर, और ये आंसर रहा है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पीरियाडिक एग्ज़ाम या टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और आप इसको ध्यानपूर्वक करने की आपको ज़रूरत है। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम ऑन द नेक्स्ट वी विल डू द another exercise in the next class about the chapter 7। So I hope that till chapter 6 everything has been completed, explanation, notes, MCQ, book exercise, thoughts, long answer, short answer, and all the questions that has been done till chapter 6 till now. So you have to prepare everything till chapter 6. Thank you very much for watching this video. If you like this video, like it. If you dislike this video, dislike it. And if you like this video, you have to subscribe my channel. Thank you, good day, and God bless you.